So continuing today's class with continuity and differentiability, we were talking about second order derivatives, and today we'll be talking about second order derivatives for parametric form. Very, very important. Students will make mistake in this 90% of the times. What is that mistake? We'll try and identify. Okay, सबसे पहले मैं कह देता हूँ, let's say y is defined as a function of t, and if x is also defined as a function of t, this is known as parametric format. Any problem, anyone? We all have talked about it in detail. हमने इसके बारे में questions किए. So what is dy by dx? dy by dt upon dx by dt, right? Yes, sir. Yes. Now d2y by dx square निकालना. d2y by dx square होता क्या है? This is d by dx of dy by dx. Yes or no? कि dy by dx को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो with respect to x. Yes. dy by dx को Yes. डिफरेंशिएट with respect to x, तो मुझे क्या मिलेगा? d2y by dx square. Very important, right? Now, what is the common mistake? What is the general mistake that students do? Is they start saying it's a parametric form है, so what I'm writing here is incorrect. Okay, so बच्चे कहते हैं सर d2y by dx square in parametric form should be d2y by dt square divided by d2x by dt square, and this is incorrect. जो ये डिफरेंशिएशन का तरीका है डिवाइड करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर चलता है पैरामेट्रिक फॉर्म में. सेकंड ऑर्डर में तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं हमेशा करता हूँ. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. हमारी एनसीईआरटी में हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस बेसिस पे. तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन है, दैट टू इज मिसलेनियस. बट लेट मी जस्ट स्टार्ट डूइंग एवरी क्वेश्चन फ्रॉम 5.6. हर क्वेश्चन 5.6 का हम सब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. ओके, क्योंकि और किसी चीज में तुम्हें अभी जब डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन तुमने किया 5.7 के क्वेश्चंस, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी हो. बट जब डबल डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फॉर्म का आता है, it is very important that you pay attention. So today I want to discuss a few things. So the question that I have in my mind right now is 5.6 का question number 8. This is x is equals to a cos t plus log of tan t by 2, and y is equals to a sin t. Let's start paying attention. What is what? क्या है इसके अंदर से? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ, एलियन तो नहीं लग रहा किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. d2y by क्वेश्चन आया है, फाइंड d2y by d स्क्वायर. d2y by dx स्क्वायर, ये बताना है मुझे. Now let's start talking about different things. What happens? अगर मैंने x का डिफरेंशिएशन किया, dx by dt निकलेगा. So we already have done it, so I'll not go through the entire things again. 1 by tan t by 2 into sec square t by 2, and the thing that you forgot last time is this half. जब मैंने तुम्हें कहा था कि ये चीज ध्यान रखनी है. And then when we simplified it, I got minus का sin t plus 1 by sin t. And then when we simplified, I got a cos square t upon sin t. I believe सबको ये ध्यान है. Yes. Now Yes, y is sir. equals to Yes, sir. dy by dt क्या आ रहा है? a cos t, right? Now मुझे dy by अगर Yes, dx sir. निकालना है तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, right? dy by dx a cos t divided by a cos square t by sin t, and a से cancel, a cos cancel, I'm getting tan t. अब सर हमेशा कहते हैं dy by dx का डिफरेंशिएशन कर दो तो तुम्हें d2y by dx स्क्वायर मिल जाएगा. तो मैं यहाँ से d2y by dx स्क्वायर निकालता हूँ.
तो d2y by dx square is equals to sec square गधा into गधे का डिफरेंशिएशन। प्रॉब्लम इज काफी बच्चे जब सोच रहे होंगे अभी भी मेरे लिखने से पहले, वो सिर्फ sec square t तक रुक गए होंगे। किसी के साथ हुआ ऐसा? यस बोल के बताओ एक बार कि सर जब मैंने d2y by dx स्क्वायर के बारे में सोचा tan t के बाद, तो मुझे लगा sec square t आंसर आएगा, बट वो t क्या हो गया मेरे लिए? गधा हो गया है। क्या हो गया है? गधा। बिकॉज जब मैं dy by dx से d2y by dx स्क्वायर पे आता हूं, आई नीड टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan गधा हो गया मेरे लिए t, तो sec स्क्वायर गधा इनटू गधे का डिफरेंशिएशन। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, Yes, sir. sir. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस। मैं बार बार कहता हूं, तो जब भी कभी एक्सरसाइज 5.7 को रिवाइज करोगे, बस यही ध्यान रखना, 5.7 में और कुछ है भी नहीं, बस हमेशा ये ध्यान रखना। और डबल डिफरेंशिएशन कम अक्रॉस करते समय जब भी मैं भी रिवाइज कराऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा यही कहूंगा, ऑलवेज रिमेंबर डबल डिफरेंशिएशन का में क्या प्रेशर पॉइंट होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म प्रेशर पॉइंट होता है। और क्या प्रेशर पॉइंट होगा जब भी मैं पूछूंगा, मैं चाहूंगा तो मुझे बताओगे सर dt by dx करना होता है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. तो Yes, दिस sir. शुड बी Yes, अ sir. स्टेपल थिंग जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। मैं जब भी सवाल पूछूं, मेरे पास आंसर आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आएगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्या प्रॉब्लम आता है? क्या भूल जाओगे तुम लोग? dt by dx। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. नाउ dt by dx Yes. कहाँ से आएगा सर? dt by dx क्या है? इसका रेसिप्रोकल। तो अगर ये dx by dt है, तो dt by dx क्या हो जाएगा? sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. तो मेरा आंसर फाइनली क्या आएगा? d2y by dx स्क्वायर का sec स्क्वायर t into sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। sec स्क्वायर t एक और sec स्क्वायर t आ गया, तो sec की पावर 4 आ गया क्या? Yes. sec की पावर Yes. 4t into sin t divided by a। now in many ways the answer could be written, but मैंने एक तरीके से लिख दिया है। any problem anyone No. understanding No, what I'm sir. trying to convey No, here? sir. this is very important। ये उसके बाद में जब ये निकाल रहे हैं तब क्लियर? Yes, sir. एक Yes. क्वेश्चन Yes, दूर sir. करके बताएंगे Yes, क्या? sir. Yes. चलो और लिखो 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10, इसका d2y by dx स्क्वायर निकाल दो। If we talk about question number 10 from 5.6, this is how it will go। मैंने पहले से solution लिख के रखा है just to save time, so let's go through it। so dx by d theta अगर तुमने निकाला होगा तो तुम्हें मिला होगा a theta cos theta, and जब तुमने dy by d theta simplify करके निकाला होगा तो तुम्हें मिला होगा a theta sin theta। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। No, sir. now No, dy sir. by dx क्या होता है? dy by d theta upon dx by d theta। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो a theta से a theta कैंसिल हुआ, and sin theta upon cos theta, I am getting tan theta। now इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो d2y by dx square is equals to tan गधा, तो sec स्क्वायर गधा into गधे का डिफरेंशिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अ प्रेशर पॉइंट। now d theta by dx कैसे निकाला मैंने? dx by d theta का रेसिप्रोकल। तो d theta by dx कैसे निकाला मैंने? 1 upon a theta cos theta। मैंने यहाँ पे d theta by dx पुट कर दिया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. 1 upon cos theta sec theta होता है, तो 1 upon cos theta sec theta लिख के sec cube theta लिख दिया, अपॉन में डिनोमिनेटर में a theta। so this is the final answer। so this is something that you'll have to understand। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No. okay No, sir. चलो one more thing that I want to talk about here is कई बार यहाँ पे
अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, मेरे पास क्या है, dx by d theta है a theta cos theta. Now if I differentiate it with respect to theta, मुझे क्या मिलेगा, d2x by d theta square. क्या मिलेगा? Are you understanding the terminology? कि d2x by d theta square का क्या मतलब है, x को थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है. Yes or no? Yes, sir. So sometimes Yes. it may happen that the question asks, okay, find the value of d2y by dx square, d2y by d theta square and d2x by d theta square. तो मुझे समझ में आना चाहिए तीनों में ही फर्क क्या है. So this is what we have talked about and ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे NCERT बेस आता है. But then अगर हम एक्स्ट्रा सोचें, कुछ बुक्स के बारे में सोचें, तो हमारे पास कभी कभी ये दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है d2y by dx square का. इट सेज कि y का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Good. sir. तो यहाँ पे d2x by d theta square का क्या मतलब है, x का डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो एक बार तो कर चुके हैं यहाँ पे, दूसरी बार एक बार और करना है तो हम क्या कर देंगे, a ऐसा का ऐसा, थीटा cos थीटा में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे. तो थीटा ऐसा का ऐसा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसा का ऐसा, sin थीटा का डिफरेंस, सॉरी थीटा का डिफरेंशिएशन 1. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. वो जो Yes, sir. dx Just a by basic d थीटा में terminology. आ रहा है ना, यस बेटा. dx by d थीटा कैसे आया, एक थीटा cos थीटा, एक बार बता दो. dx by d थीटा इसको डिफरेंशिएट करने से आया है बेटा. dx by d थीटा इज इक्वल्स टू a ऐसा का ऐसा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा प्लस थीटा sin थीटा में मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. तो थीटा ऐसा का ऐसा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस sin थीटा ऐसा का ऐसा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1. sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हुआ एंड देन आई विल बी गेटिंग a थीटा cos थीटा. And then differentiating it again with respect to theta, I will get d2x by d theta square. I hope सबको समझ में आ रहा है ये बात. Yes. Anyways, Yes. this is Yes, sir. extra. हमारा जो NCERT है वो क्या कहता है, d2y by dx square निकालने तुम्हें आना चाहिए. एंड इसका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट क्या है, क्या है प्रेशर पॉइंट? D theta by Parametric dx. form. d theta by dx. Very good. खैर आगे बढ़ेंगे आज. We'll start with miscellaneous exercise now. Question number 1 to question number 10th I have already given in homework. Question number 11th and question number 12 again is a part of homework. I am not discussing that. For question number 13th, let's start. So y is equals to sin inverse x plus sin inverse root के अंदर 1 minus x square. मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि whenever there is inverse trigonometry, always think about some substitution if there is anything you can do. नॉर्मली जब बच्चे सॉल्व करते हैं इसको तो आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट करने के लिए हम देखें एक बारी के लिए, x को यहाँ पे मैं sin थीटा पुट कर देता हूँ. What will happen? I'll be getting y is equals to sin inverse of sin थीटा. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, sin inverse के अंदर sin थीटा आ रहा है एंड sin inverse रूट के अंदर 1 minus sin square थीटा, दैट इज cos square थीटा का रूट cos थीटा, sin inverse of cos थीटा. So sin inverse of sin थीटा is थीटा plus sin inverse of cos theta is pi by 2 minus theta. Yes or no? Yes. Yes, sir. Sin inverse cos theta को हम कैसे डील करते हैं, pi by Yes. 2 minus cos inverse of cos theta. तो देखो थीटा से थीटा कैंसिल, y की वैल्यू आ रही है pi by 2. So dy by dx डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 because it is a constant. Any problem anyone? No, sir. No, तुम sir. इसको डायरेक्टली sir. डिफरेंशिएट भी करते No. तो भी वर्क करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो विदाउट एनी डाउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार मार्क करेंगे. 14th and 15th आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.
बट क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ वो तरीका एक इकलौता तरीका है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। द प्रॉब्लम इज दिस विद दिस क्वेश्चन। अदरवाइज क्या होता है, हम मैथ्स में कहते हैं, मैं कहता हूँ ये भी कर लो तो भी आंसर आएगा, ये कर लो तो भी आंसर आएगा, बट ट्रस्ट मी, आई हैव स्पेंट इयर्स डूइंग दिस क्वेश्चन with different ways, with different substitutions. I could not find a way yet जिससे मैं इसको कोई और तरीके से कर सकूं। So what is the way that this question will be done, and जो prove करना है वो prove हो जाएगा। So let's start. So you'll have to remember this question. इसलिए डबल स्टार मार्क, 3 स्टार मार्क करके रख लो और लिख लो भले इसको कि याद करना है। So I have to remember this. So x root of 1 plus y root of 1 plus x is equals to 0, and I need to prove where dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x का whole square. Okay, so the way is, अगर तुम इसको directly differentiate करना शुरू करते हो, it will never work. It's never going to work. Okay, then what else can we do? देखते हैं तरीका क्या है। x root of 1 plus y is equals to, लिख सकते हैं माइनस का y root of 1 plus x। इस टर्म को इधर भेजा है। Yes, Yes. or no? Yes, sir. Now squaring both Yes, sir. sides, x square into 1 plus y is equals to y square into 1 plus x. So what I'm getting here, देखो x square plus xy is equals to y square plus xy square, and यहाँ पे मुझे x square y लिखना चाहिए। Now सब कुछ एक साइड ले लिया, so x square minus y square plus x square y minus xy square is equals to 0. Now इन दोनों में से देखो x minus y x plus y लिख सकता हूँ इसको, Yes. प्लस यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ब्रैकेट में x माइनस वाई, x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Either x is equals to y, which is not possible because this is not the case that we consider x और y दो वेरिएबल्स को हम इक्वल नहीं मान सकते unless otherwise they are given. So, or x plus y plus xy is equals to 0, and यहाँ से y 1 plus x is equals to 1 minus, sorry, is equals to minus x, इस x को इधर भेजा, यहाँ पे y कॉमन लेके मैंने लिखा है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का x अपॉन 1 plus x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, you will get the desired result. dy by dx is equals to minus, डिविजन रूल अप्लाई कर दें, 1 plus x ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x ऐसा का ऐसा, 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो रहा है, and you can easily see the answer is minus of 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। Hence proved. There is no other way, mark my words, जिसका ये solution आएगा। Okay, so you have to be very attentive जब ये क्वेश्चन दिखाई दे तुम्हें कभी भी कहीं पे भी। You can obviously go through the video again to look at the solution of this question because you'll have to एक बार और देखेंगे। अभी के लिए I'm not giving you time as such to note this down because I'll be uploading the video just after this class, so you can always go through it again and अपने आप एक बार attempt करके देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ के बाद इसका simplification is a mathematical factorization process which I believe काफी बच्चे को समझ में आता है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी definitely, but then इसको थोड़ा मास्टर करने की कोशिश करें। Factorization is not something that you will be able to avoid throughout the year. Question number 15 again is a very important question from board's point of view because board has given this question time and again. बार बार board ये सवाल देते रहता है, and let's see what is the trick of this question. थोड़ा सा substitution हमें ध्यान रखना पड़ता है, that's it. So I'll start with question number 15 right away. Is everyone with me? एक बार yes बोल के बताएंगे सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, सबको sir. समझ में आ रही है बात Yes, कि मैं sir. क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन है, if x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equals to c square. First of all, who can tell me what does this equation represent graphically? Circle. Sir, circle का equation. Very good, very good. So this is circle का equation. So that is out of context though. I need to prove for some c greater than 0, prove that 1 plus dy by dx का whole square की power 3/2 divided by y double dash is a constant independent of a and b. मुझे शो करना है this is a constant independent of a and b. Now what do we mean when we say this independent of a and b? मतलब इसका जो expression आएगा उसके अंदर a और b नजर नहीं आना चाहिए मुझे। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Okay. So how do we start this question? There are multiple ways with which students start this question. I say directly jump onto the question right away. कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भाव देने की जरूरत नहीं है. Let's directly start the question. This is the equation given and मैं इसको differentiate करना शुरू करता हूँ. तो मैं कहता हूँ गधे की पावर 2, 2 into गधा into गधे का differentiation 1 ही आ रहा है, प्लस गधे की पावर 2, 2 into गधा into गधे का differentiation जब मैं करूंगा तो मुझे y dash मिलेगा. Yes or no? Yes. And then c square का Yes, differentiation sir. will be 0. Any problem anyone? No, sir. No, sir. y dash की वैल्यू देखो क्या आ रही है, माइनस का 2 times x minus a अपॉन 2 times y minus b. तो ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. yes or no? So y Yes. dash is equals to minus of x minus a upon y minus b. Now इसके बाद में y डबल डैश निकालना क्या मेरे लिए कोई पर्टिकुलर टास्क है? मैं एक छोटा सा टिप और दूंगा अभी कि मैं जब कभी मैथ्स करता हूँ तो मैं क्या चीजों का ध्यान रखता हूँ, राइट? सो अभी y डबल डैश जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं इस माइनस को अलग ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हेवक एंड आई डू नॉट वांट दैट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में. आई वुड वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स. तो ये माइनस को साइड में रख लो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग डिवीजन रूल. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर? Yes. Sir. कि माइनस Yes, sir. हमेशा ही कभी भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हो, माइनस को बाहर लेके फिर करो. ऐसा नहीं कि मैं माइनस ऑफ x माइनस a का डिफरेंशिएशन करूंगा. इसको एक न्यूमरेटर मत मानो. डोंट कंसीडर माइनस एज अ पार्ट ऑफ योर न्यूमरेटर. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर? Yes. Yes, sir. Yes. माइनस को साइड में ले लिया एंड Yes. देन आई एम अप्लाइंग डिवीजन रूल फॉर x माइनस a अपॉन y माइनस b. तो मैंने कहा y माइनस b, x माइनस a का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस a ऐसा का ऐसा, y माइनस b का डिफरेंशिएशन इज y डैश, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा. सो y का डिफरेंशिएशन y डैश, b का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय y माइनस b का होल स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. यहाँ पे y डैश आ रहा है तो मुझे y डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्या? Yes. चलो let's start putting values. So y double dash is equals to minus y minus b minus of x minus a. y dash की वैल्यू देखें, minus of x minus a upon y minus b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. x minus a upon y minus b divided by y minus b का whole square. Any issues anyone? No, sir. No, No, sir. sir. Now please थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला अपना दिमाग चालू रखेंगे. y डबल डैश क्या आ रहा है? देखो माइनस तो है ही बाहर, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b डिनोमिनेटर में आएगा तो ये y माइनस b का क्यूब हो जाएगा. ओके, किसी को कुछ चमक रहा है क्या इसको देख के? Yes, sir. क्या है? ऊपर शीश पर हो गया. बिल्कुल सही. वेरी गुड. दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट यू नीड व्हाइल डूइंग दिस. कि भाई न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? Yes. c स्क्वायर के इक्वल है. यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते, उनका इतना ग्रोथ ही नहीं हो पाता, इतना दिमाग डेवलप नहीं हो पाता कि वो चीज को ऑब्जर्व करके लिख सके. हम लोग उस कैटेगरी में नहीं रहना चाहेंगे डेफिनेटली. सो विल हैव टू प्रैक्टिस दिस अ लिटिल बिट कि ऑब्जर्वेशन हमारा थोड़ा सा कीन होना चाहिए. वी हैव टू बी वेरी
observant. So minus of c square divided by y minus b ka whole cube. Any problem, anyone, as to how No. I have simplified till y dash? No, sir. Okay. Now let's talk about this particular expression जो मुझे बात करनी है. मैं कहता हूं मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन में लिखूंगा ताकि अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा. 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर लिख दूं क्या डायरेक्ट? x माइनस ए का होल Yes. स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश दैट इज माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लेता हूं y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर. इसकी ओवरऑल पावर 3/2 है डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब. Again, can you observe something in the numerator? Yes, sir. Yes. Upper C square. Again, I am getting y minus b का whole square plus x minus a का whole square and that is c square. Yes or no? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसकी पावर 3/2 है डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब. ओके, पावर 2 की पावर 3/2 पावर 3 बचेगा क्या? Yes, sir. डिवाइडेड बाय माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब. y माइनस b के होल क्यूब से y माइनस b का होल क्यूब कैंसिल. c स्क्वायर से c क्यूब में सिर्फ c बचेगा एंड द फाइनल आंसर आई एम गेटिंग हियर इज माइनस c. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It is a constant and it is independent of a and b. Hence proof. So is it a difficult question? No, not at any point does it become difficult. But yes, does it need practice? Yes, it does need practice and it needs conviction that yes, if I'll do my work sincerely, step by step मैं अगर काम करूंगा जितनी भी skills मैंने develop की है उसके साथ मुझे कोई problem नहीं आएगी इन questions में. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Does anybody wants to note it down? If anybody is noting it down, please let me know. Otherwise, I'll move on to the next question. Okay. Moving ahead, let's talk about question number 16th. Again, a very important question and a very important thing that you are going to learn in this question. Very important thing. And इसी basis पे मैं तुम्हें कल जब भी chapter complete हो जाएगा या फिर कल कुछ questions extra भी दूंगा. ठीक है? It's very important question. Please pay attention. What is a trick? Question number 16th. The question is cos y is equals to x cos a plus y. And I need to prove that dy by dx is equals to cos square a plus y divided by sin a. Now, जब कभी तुम्हें कुछ प्रूव करना होता है डिफरेंशिएशन में और तुम्हारा प्रूव नहीं आ पा रहा, इसका मतलब तुमने एक छोटी सी चीज मिस कर दी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू किया. माइनस का साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. x ऐसा का ऐसा कॉस गधा माइनस का साइन गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ऑफ a प्लस वाई ऐसा का ऐसा x का डिफरेंशिएशन 1. मुझे y डैश की वैल्यू लिखनी है. मैं इसको इधर लेके y डैश कॉमन लेके लिख रहा हूँ क्योंकि तुम आज वापस अटेम्प्ट करने वाले हो. आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. cos of a plus y divided by x sin a plus y minus sin y. But I need to prove it this. Now यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा जाए is a trick, is a skill that you will develop and that skill का नाम is
सब्स्टिट्यूशन. नाउ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि हम किसी एक चीज को रिप्लेस करें किसी और चीज से, और वो कहां से आएगा? हमेशा क्वेश्चन से. कहां से आएगा? क्वेश्चन से. तुम अगर ध्यान से देखो, प्रॉब्लम क्या है? देखो, cos ऑफ a प्लस वाई चाहिए मुझे, इसको सब्स्टिट्यूट करना कोई सेंस नहीं है. साइन ऑफ a प्लस वाई, साइन वाई इज स्टिल फाइन. x इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे कभी x आ ही नहीं रहा. देयर इज नो x. यस और नो? Yes. Yes. Sir. Yes, sir. तो क्या मैं x को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे? Yes. यहाँ से क्या मैं x को लिख सकता हूँ cos y अपॉन cos a प्लस वाई? Yes, sir. Yes, sir. एंड जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो. y dash is equals to cos of a plus y divided by cos y upon cos a plus y into sin a plus y minus sin y. एलसीएम लेते हैं तो cos a plus y ऊपर जाएगा, सो cos square a plus y divided by cos y sin a plus y minus sin y cos a plus y. नाउ किसी को डिनोमिनेटर में कुछ नजर आता है क्या? tan a plus Sin A minus B. बिल्कुल सही. क्या बात है निखिल, आज तो दिमाग चल रहा है लड़के का. डिनोमिनेटर इज sin a minus b. दिस इज सम, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, हमें पता है कि मुझे क्या सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अपना थॉट वहां पुट कर सकता हूँ. तो अगर तुम डिनोमिनेटर में देखो sin a cos b minus cos a sin b, नजर आया क्या? आप yes or no? So sin a cos b minus Yes, cos sir. a sin b is the identity for sin a minus b, and if you will say sin a plus y minus y, you will get sin a. And now hence proved. Again, there are students जो दूसरी बुक्स देखते हैं और फिर मेरे को आके कहते हैं सर आप पागल हो, आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज आप यहीं पे इसको x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y करते हो और अब इसको डिफरेंशिएट करो. तो मैं उसको कहता हूं लाला ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट बाकी के क्वेश्चंस जो करने हैं हमें, हर बार ऐसा नहीं होता. बाकी के क्वेश्चन में जो स्किल हमें चाहिए वो ये है दैट वी लुक एट व्हाट वी आर गेटिंग, वी लुक एट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड देन वी ट्राई एंड रीच देयर. बात समझ में आ रही है? सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Yes, sir. ऐसा होता है कि डायरेक्टली स्टार्टिंग में x इज इक्वल्स टू लिख लो एंड देन डिफरेंशिएट कर दो तो x एलिमिनेट हो जाता है एंड विल डायरेक्टली गेट द रिजल्ट. But the skill I want you to learn with this question is this substitution. Am I making myself clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. That is